इंटर्नशिप करनी है, एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। मैं सीधा बोल देता भाई मैं कॉलेज नहीं जाता, तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि एंड इट वाज नॉट लाइक प्रोग्रामिंग और आई वाज अ प्रोग्रामिंग गीक, इट वाज जस्ट लाइक ओके हाउ कैन आई हैक क्लैश ऑफ क्लैंस। जीसॉक है क्या, मतलब क्यों क्रैक करे बंदे? यार पहली बार मारी थी तब जीसॉक का एप्लीकेशन क्लोज हुआ था। जिस फ्रेमवर्क में तुम काम कर रहे हो वो फ्रेमवर्क में मेरे ये 2 फीचर्स एडेड है, तो वो तो हो गई ना भाई नेक्स्ट लेवल की बात। सब मिलके बनाएंगे, सब मिलके यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ डेवलपर। तो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूट करें क्या? वेलकम टू फर्स्ट सेम कोडर, द अल्टीमेट हब फॉर ओपन सोर्स enthusiasts. Our mission is to demystify open source and make it accessible to everybody, regardless of their background. Now let's dive into the story of Swapnil Shinde, a name that is quickly becoming synonymous with excellence in the open source community. Hailing from Savitribai Phule Pune University, Swapnil has shattered the myth about needing a Tier 1 college background to achieve greatness. He is a GSOC 23 achiever with OVAS, a GSOC 24 mentor, and an LFX 23 fellow. But that's not all. He is also an MLH Web3 Incubator Fellow, an MIT Bitcoin Hackathon winner, and a blockchain specialist. And did I mention he is a technical lead at GDSC and has met industry giants like Kunal Kushpa. So Apnil, we are thrilled to have you here today. Let's start from the beginning. What was your journey like before entering college? How did your interest in technology, everything? Thank you so much, Shahad, for the introduction. About my journey, where I started, it was really straightforward. There was one subject, Python, in the 11th grade. So my friend told me about, okay, there's this new subject regarding programming using which you can create apps. So I thought, okay, that's really cool. Let's try it. And then I started watching this Python tutorial from Telescope. He's quite famous. So after that, I didn't stop like creating apps, scripts, tinkering around. So that is what I liked, because I was into like tech way before, I guess ninth, and it was not like programming or I was a programming geek. It was just like okay, how can I hack Clash of Clans? So it started from there. So I started developing scripts in my 11th grade, and side by side I had these Python classes, CBSE thing. So we have this Python as a subject there. So I learned about it. Then I got very interested. Tried cybersecurity also. So that's how I got to know about WASP. We are currently mentoring as GSOC mentor. So yep, that's from where I started. And yeah. So like actually a lot of people मतलब start करते हैं 10th हो गया, बोर्ड्स दे दिए, and after 10th most of the people prepare for JEE में से एडवांस. So आपने प्रिपेयर किया था उसके लिए? नहीं मैं बोले तो नहीं किया था. मोस्टली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही देखता था. इंटरेस्ट आ गया था मेरे को, तब पता तो चल गया था ठीक है. एक और चीज़ ये है कि पेरेंट्स बोलते थे कि जेई करो वरना कॉलेज नहीं मिलेगा. लोगों ने बोला कि भाई तू कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता है, ठीक है, तेरे को इंटरेस्ट है, तो अगर तेरा अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ तो तू कैसे पढ़ेगा कंप्यूटर साइंस. तो मैंने बोला कि भाई मेरे को कौन रोकेगा भाई पढ़ने से, मतलब अगर मैं अच्छे कॉलेज में ना हो, है ना, क्योंकि सब तो यूट्यूब पे था उस वक्त, वही चीज़ है. तो मैं जेई में इतना इंटरेस्टेड नहीं था. फिर भी मैंने ट्राई मारा. जेई में पहला अटेम्प्ट दिया था, 80% आए थे, विच इज़ंट इनफ टू इवन क्रैक द मेंस. सो यप, आई ड्रॉप द प्लान और कोडिंग ही कर रहा था मैं 12th में मोस्टली, जेई के बाद. 12th के बाद कॉलेज का फर्स्ट ईयर में कैसा था? मतलब एक वो मिसकंसेप्शन रहता है ना कि टायर 1 कॉलेज में ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एटमॉस्फेयर वैसा मिल पाता है कि फ्रेंड ग्रुप ऐसा है, कोई हैकाथॉन कर रहा है, कोई जीसॉक निकाल रहा है, कोई एलएफएक्स निकाल रहा है. फ्रॉम अ टायर टू कॉलेज पर्सपेक्टिव वैसा एटमॉस्फेयर मिल पाया? ओके, सो फर्स्ट ईयर तो बहुत मतलब सबके लिए कॉमन ही था. तो सेम ही चीज़ रहेगी कि कंपल्सरी अटेंड करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें. तो मैं जाता था, अटेंड करता था, फिर बीच में ही बंक मार देता था क्लासेस. उसके बाद वही देखता रहता था कि ओके हाँ. एक और चीज़ की तब मैंने स्टार्ट कर दिया था कि ओके हाँ, मेरे को कोई ना कोई ओपन सोर्स प्रोग्राम में ट्राई तो करना है एटलीस्ट, क्योंकि मैंने बहुत सुना था. मैंने कहा कि चलो भाई अगर यही स्किल्स टेस्ट करने के लिए और इम्प्रूव कर सकती है, स्पेशली ओपन सोर्स, तो मैंने बहुत सुना था. तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं. मैंने सोचा कि ओके अगर मेरे पास साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है तो क्यों ना उसी ऑर्ग में ट्राई करें जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड आती है. तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर में ही मतलब पीआर्स मारना स्टार्ट कर दिया था ओवास्प में. मैं बस ऐसे कैजुअली ब्राउज कर रहा था, तो मैंने देखा ओवास्प करके BLT करके एक प्रोजेक्ट है.
Django यूज़ करता है। मैं एक्चुअली तब एक इंटर्नशिप भी करता, तो उसमें मोस्टली मैं Django पे, ऐसा है कि उन्होंने अंडरपेड ओवरवर्क्ड इंटर्न हायर कर लिया था, तो पूरा बैकएंड खुद से डेवलप करना था और मेरे को Django इतना आता भी नहीं था। उसमें मैं बहुत सीखा बहुत। तो वहाँ से मैंने GSOC के लिए फिर बेसिकली कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ईयर में मोस्टली यही था कि मैं ज़्यादा कॉलेज नहीं जाता था, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद साइड बाय साइड अपना करता रहता, क्योंकि कॉलेज में यार मैं गया भी नहीं हूँ अभी तक। मैं सही में बताऊँ तो बहुत 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 इवेंट्स में जाता हूँ। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई तू क्या, मतलब वो तो रहेगा ना कि भाई तू इतने ओपन सोर्स प्रोग्राम कर रहा है या फिर तू ये कुछ अलग चीज़ कर रहा है, तो बोले कि भाई तेरे को टाइम कहाँ से मिलता है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं सीधा बोल देता हूँ भाई मैं कॉलेज नहीं जाता। और फिर जब मैं बाकी लोगों को देखता हूँ कि हाँ उनको कॉलेज जाना पड़ता है, उनका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है कॉलेज में, तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई हम मेरा कॉलेज इतना वर्थ इट नहीं है जाने के लिए, तो इसलिए तो मोस्टली मैं बोर्डिंग पे ध्यान दे। 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं है? यार वो तो है, पर अभी कौन ही फॉलो करेगा इंट्री अ, कॉलेज। आपने बताया कि ओपन सोर्स को आपको पहले से पता था, तो कब पता चल गया था ओपन सोर्स के बारे में? कॉलेज में, कॉलेज से पहले ही पता चल गया था? नहीं, ओपन सोर्स के बारे में तो बहुत पता था ही, क्योंकि मैं लिनक्स यूज़ करता था। लिनक्स अच्छा। तो भाई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ही वही है यार, ओपन सोर्स हाँ। का, जहाँ से स्टार्ट हुई। तो वहाँ पे भाई जो राइसिंग वाइसिंग बोलते हो ना तुम लोग, कि हाँ लिनक्स को कस्टमाइज करना, बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पर ऐसे देखा मैंने कि ओके वहाँ पे कस्टमाइजेशन में थोड़ी चेंजेस कर दिए, वो सब चीज़ें। वहाँ से थोड़ा गिटहब सीखा वैसा करके। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा आइडिया हो गया था। अराउंड 12th की बात थी यही। तो वहाँ से मेरे को आइडिया हो गया था कि ओपन सोर्स क्या रहता है, क्या चीज़ें रहती है। और बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स के साथ भी ऐसे टाइम पास किया था मैंने, क्योंकि इधर उधर तो कुछ तो करता ही रहता था। तब ब्लेंडर हो गया, VLC हो गया, ये तो फ्री है, मॉजिला हो गया। तो ये सारी चीज़ें भाई जो बहुत काम की है टूल्स है ना, ओपन सोर्स नहीं दिए है ना। तो फिर मैंने सोचा कि ओके फुल ट्राई करते हैं फिर। तो पता था मेरे को थोड़ा पहले से। अच्छा, ओवेस में आपने बताया कि पीआर डालनी स्टार्ट कर दी थी, तो वो फर्स्ट ईयर में डालनी स्टार्ट करी थी ना? फेब में चालू किया था मैंने, आई गेस फेब में ऐसे मतलब बात करना तो स्टार्ट कर दिया था ऐसे कम्युनिटी में। फिर PR थोड़ी लेट मारनी स्टार्ट की। उसके बाद GSOC, जब मैंने पहली PR मारी थी तब GSOC का एप्लीकेशन क्लोज हुआ था। मैं एक बंदे से पूछ रहा था कि ओपन सोर्स में क्या क्वेश्चंस आते, तो सबसे पहले वो वही कंफ्यूज है कि ओपन सोर्स होता क्या है और ओपन सोर्स क्यों करें, क्या है ओपन सोर्स और बेनिफिट्स क्या है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने। पहले ये कि ओपन सोर्स क्या होता है, ये इसका नाम ही बता देगा। ओपन सोर्स, हमारा सोर्स कोड ओपन है ना। अब इसका फ़ायदा ये है कि सोर्स कोड ओपन है। बेसिकली ऐसा है कि सब मिलके बनाएंगे, सब मिलके यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसा चीज़ है, फ्री, ठीक है। और डिपेंड्स ऑन द लाइसेंस ऑल्सो। बेसिकली यही ओपन सोर्स का मीनिंग है। बहुत बहुत ब्रॉड मीनिंग भी है इसका। कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व है ओपन सोर्स के लिए, कम्युनिटीज़ चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें रहती है ना। तो अब ओपन सोर्स को ड्राइव करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, है ना। सब लोग वहाँ पर फ्री में अपना टाइम दे रहे हैं ना, ऑब्वियसली फ्री में एक चीज़ के लिए टाइम दे रहे हैं और फिर उसको आगे पुश कर रहे हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है ना। देखोगे तो मिल के लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं कम्युनिटीज़ में, एक प्रोजेक्ट को आगे ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी इकोसिस्टम को बेनिफिट होगा, है ना। तो यही सीन है कि वो जो ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ है ना, बाय डिफॉल्ट बहुत ओपन है, बहुत ओपन है मोस्टली कम्युनिटीज़। तो अगर आपको स्टार्ट भी करना है तो आप बहुत इजीली ओपन सोर्स में जा सकते हैं। फ़ायदे क्या है ओपन सोर्स के, वो ये है कि एज अ स्टूडेंट, ठीक है, एज अ स्टूडेंट तुम लोग यहाँ पर फंसे रहोगे कि हाँ इंटर्नशिप करनी है, एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, है ना। तो वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कहीं ना कहीं तो इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तो वो लूप रहता है ना, तो उसमें फंस जाओगे, ठीक है। ओपन सोर्स और प्रोजेक्ट बिल्डिंग और हैकाथॉन्स उस चीज़ को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। कैसे, अगर तुम ओपन सोर्स करोगे तो तुम्हारा वर्क ही ओपन है, तो तुम क्रेडिबिलिटी बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटीज़ ओपन है पूरी, है ना। तुम बस अपना टाइम दे रहे हो फ्री में वहाँ पर उस चीज़ को आगे पुश करने का, ठीक है। तो अब यही चीज़ है कि अगर तुम अपना टाइम दे रहे हो, तुम अपनी स्किल्स को दिखा भी सकते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, जब भी तुम ओपन, मतलब अगर तुम लिनक्स में या किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। सपोज अगर तुम रिएक्ट डेवलपर हो, तुमने रिएक्ट में ही 2-3 PRs मार दी, और फिर तुम्हारा इंटरव्यू पूछेगी तुमने क्या क्या किया है, और तुमने बोला कि भाई जिस फ्रेमवर्क में तुम काम कर रहे हो वो फ्रेमवर्क में मेरे ये 2 फीचर्स एडेड है, तो वो तो हो गई ना भाई नेक्स्ट लेवल की बात। प्लस जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स है वो बहुत प्रोडक्शन रेडी रहते हैं ना, क्योंकि उनका कोड स्ट्रक्चर बहुत ऐसे रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो तुम पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, है ना। तो वही है कि तुम्हें कोड बेस समझना आ जाएगा, तुम्हें डेवलपमेंट आ जाएगी, क्लीन कोड कैसे लिखते हैं, PRs कैसे रेज करते हैं, कोलैबोरेट कैसे करते हैं, कम्युनिटीज़ में एंगेज कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ डेवलपर। तो और बेसिकली एज अ सोसाइटी भी, है ना, क्योंकि यही कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें, एफर्ट्स सारे मिला के ही हम लोग साथ में चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। तो ओपन सोर्स ज़रूरी है। एटलीस्ट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, मैं बोलूँगा कि ठीक है इंटरेस्ट नहीं है तो देख लो, पर लेकिन डेफिनेटली ट्राई आउट करना पड़ेगा। मेन बात ये आती है ओपन सोर्स के बारे में किसी को पता भी हो,
तो वो कंफ्यूज होता है कि हाउ टू स्टार्ट, बिकॉज उसने थोड़ा बहुत टेक सीख रखा है, लेट्स से रिएक्ट सीख रखी है, उसके बाद थोड़े प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं, 1-2 प्रोजेक्ट्स बना रखा है, उसको बेसिक नॉलेज है। लेकिन जब वो ओपन सोर्स के बारे में सुनता है, उसने थोड़ा पढ़ा, फिर उसके बाद जब वो ऑर्गेनाइजेशन चूज करने की बारी आती है, फिर उसमें लाइक अलॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद हाउ टू स्टार्ट, मेन थिंग है हाउ टू स्टार्ट। एक बार उसने ऑर्गेनाइजेशन भी चूज कर ली, तो लोकल इंस्टॉलेशन में भी दिक्कत आती है। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि हाउ टू चूज अ प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद हाउ टू इंस्टॉल अबाउट इट, हाउ टू स्टार्ट, और ओपन सोर्स को कैसे प्रोजेक्ट कैसे चूज करना। और लॉट ऑफ पीपल आस्क कि कौन सा टेक स्टैक बेस्ट रहेगा ओपन सोर्स के लिए, ये पूछते रहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि बहुत 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 सारी चीज़ें ओपन सोर्स, अगर मेरे ख्याल से तुम मोस्टली जी सॉफ्ट के बारे में बात करो, क्योंकि ओपन सोर्स तो फिर जी सॉफ्ट में मैं बोलूँगा कि प्रोजेक्ट कैसे चूज़ करना तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रायर स्किल्स क्या है। मर्न स्टैक में बहुत सैचुरेटेड है, ये है ट्रुथ है, पर जी सॉफ्ट एक ऐसा है कि वो ये नहीं इस पर नहीं डिपेंड करता कि आपकी कोडिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, ठीक है, उस वो मैटर ही नहीं करता, ठीक है। मैं जब स्टार्ट किया था, मैं ये झूठ नहीं बोलने वाला कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता था और भाई मैंने ऐसे क्रैक कर लिया। मेरे को आता था, क्योंकि उससे पहले मैंने एक इंटर्नशिप की थी जिसमें मेरे को पूरा पूरा एक्सपोजर मिल गया था, ठीक है, जैंगो के साथ, तो मैं बहुत इजीली स्टार्ट कर पाया। पर लेकिन मैं बाकियों को देखता हूँ तो होता है, क्योंकि उन्होंने पहले कहीं ऐसे एक्सपीरियंस गेन नहीं किया होता है ना, तो ऑब्वियसली बहुत नेचुरल चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि जो भी टेक स्टैक है अभी आपका, अगर मर्न स्टैक है, ठीक है, उसके साथ कंटिन्यू करो एटलीस्ट। ओपन सोर्स मतलब जी सॉफ्ट ठीक है अलग जगह पर, एटलीस्ट ओपन सोर्स पे स्टार्ट कर दो, उसके बाद जी सॉफ्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो ओपन सोर्स में स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं, जो भी रिएक्ट या मर्न स्टैक है, सॉरी मर्न स्टैक के तो बहुत ही प्रोजेक्ट्स हैं ना, मतलब कितने ही प्रोजेक्ट्स हैं। तो तुम कहीं पे भी जाओ, कोई भी टूल तुम यूज़ करते हो, कोई भी लाइब्रेरी तुम यूज़ करते हो अपनी इसमें, तुम उसके इश्यूज़ पे जाओ, ठीक है, तुम उसके इश्यूज़ देखो। हाँ, वो चीज़ है कि सेटअप कैसे करना, तो एक एक पूरा प्रोसीजर है इसका कि एक ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं, जो कि मैंने देखा है बहुत बहुत ये स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं कि जब भी मैं कोई नए प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करता हूँ। पहली चीज़ है कि जानो कि वो प्रोजेक्ट है क्या, ठीक है। पहले देखो अबाउट सेक्शन, कोई भी प्रोजेक्ट पे जाओ ना, उसका अबाउट सेक्शन पढ़ो, उसका रीड भी पढ़ो, देखो कि ये प्रोजेक्ट करता क्या है और क्या चीज़ है। तुम्हें समझने तो आया, ऐसा नहीं है कि हाँ तुमने देखा अच्छा ये जी सॉफ्ट पे आती है या ये इधर आती है या फिर ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको क्लोन कर लिया, ठीक है, ऐसे करके, और उसके बाद रन करने लगे, और उसके बाद या फिर डायरेक्ट इशूज़ पे चले गए और फिर देखने लगे कि भाई ये इशूज़ तो समझ ही नहीं आ रहे, भाई ये तो ओपन सोर्स तो बहुत हार्ड है। वैसा नहीं होता है ना, क्योंकि कोई भी अगर तुम्हें बाइक भी चलानी है तो तुम्हें एटलीस्ट बाइक पे स्टंट्स मारने हैं, तो एटलीस्ट तुम्हें उसको चलाना है, उसको फील करना है ना, तुम्हें जानना पड़ेगा कि अच्छा इसका वेट कितना है, इसका ये कितना है ना। तो वैसी चीज़ें प्रोजेक्ट के बारे में भी है। प्रोजेक्ट है, तुम्हें कुछ कुछ नहीं मालूम है उसके बारे में, तो क्लोन करो उसको। पहली चीज़ ये है कि आँख बंद करके उसको सेटअप करो, ठीक है। सेटअप नहीं हो रहा तो कम्युनिटी में जाओ, स्लैक चैनल रहेगा उनका, डिस्कॉर्ड रहेगा, कुछ तो रहेगा, इवन आईआरसी भी होता है, तो उसमें जाके क्वेश्चंस पूछो कि मेरा ये सेटअप नहीं हो रहा, ये एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है, ऐसे चैट जीपीटी करो, ऐसे ऐसे करके एटलीस्ट उसको सेटअप कर दो। उसके बाद जब तुम उसको सेटअप कर दोगे ना, तो तुम उसको यूज़ करो 3-4 दिन, ठीक है। सेटअप में आराम से टाइम लो, 1 हफ्ता लग जाए, ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। तुम्हें पता तो चलेगा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही सेटअप में, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है ना, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को 4-5 दिन यूज़ करो, ठीक है। उसका फील लो कि अच्छा भाई प्रोजेक्ट है क्या, सपोज वो कोई वेबसाइट है, कोई टूल है, ठीक है, तो वो देखो कि अच्छा यहाँ पर नैप बार है, अच्छा इधर ये फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, अच्छा ये फीचर्स है इसके अंदर, हम ये कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से, ठीक है, क्या अचीव कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है। उसके बाद जब तुम कोड बेस देखोगे ना, तो तुम्हें सेंस बनाएगा कोड बेस। अगर किसी फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है तो उस फ्रेमवर्क की नॉलेज तुम्हें थोड़ी होनी चाहिए वो कोड बेस समझने के लिए, तो वो उससे पहले तुम्हें देखना तो पड़ेगा ही। पर लेकिन जब तुम प्रोजेक्ट को यूज़ करोगे उसके बाद उसका कोड बेस देखोगे, ठीक है। अभी अगर तुम ये ओबीएस स्टूडियो से रिकॉर्ड कर रहे होगे, तो ओबीएस स्टूडियो तुमने यूज़ किया होगा, उसके बाद तुम उसका कोड बेस देखोगे। अगर तुम्हें सी प्लस प्लस आती है थोड़ी सी, मतलब थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल की भी, तो तुम समझ जाओगे कि अच्छा ये इस फीचर के लिए था जो मैं यूज़ कर रहा था, ये इस फीचर के लिए था। तुम्हें सेंस बनाएगा प्रोजेक्ट, तो उससे क्या होगा कि तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई ये मेरे को समझने आ रहा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम जानोगे नहीं प्रोजेक्ट करता क्या, तो तुम सिर्फ लेटर्स को देख के तुम समझ नहीं सकते कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या करता है, ठीक है। अगर तुम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो कर सकते हो, पर यूजुअली तुम्हें समझना तो पड़ेगा प्रोजेक्ट करता क्या है। उसके बाद तुम्हें कोड बेस समझने आएगा, उसके बाद तुम इश्यूज़ पे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद इश्यूज़ देखोगे, पहली बात तो तुम अगर यूज़ करोगे तो तुम्हें खुद ही इश्यूज़ दिख जाएंगे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कि अच्छा भाई इसका यूआई अच्छा नहीं है, इसका यहाँ पर ये कर सकते हो, उसका वहाँ पर वो कर सकते हो। तो यूआई इश्यूज़ बहुत वो रहते हैं। इवन अगर वो इशू एग्जिस्ट भी नहीं करता, तुम रेस कर सकते हो या फिर तो कम्युनिटी में कि हाँ मैंने ये इशू देखा, मैं मोबाइल में चला रहा था, रिस्पॉन्सिवनेस देखी तो नहीं है। सपोज कोई CLI टूल है, तो कोई चीज़ ब्रेक कर रही है उसके अंदर, या कुछ एडिशनल कमांड ऐड करनी है उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो वो तुम कम्युनिटी में सीधा मेंटर से पूछ सकते हो, उस जो प्रोजेक्ट का लीडर रहता है उससे पूछ सकते हो कि हाँ भाई मेरे को लगा क्या ये फीचर ऐड कर सकते हैं, तो बिंदास बोलेगा कि हाँ भाई क्यों, उनको सही लगेगा तो कर लो ऐड।
तो फिर तुम खुद का इशू क्रिएट करके भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने तो खुद का इशू ही क्रिएट किया था, वो भी ऐसे था कि एक बटन अलाइन नहीं था, तो वो चीज़ थी वैसे। तो मैंने बटन अलाइन करके दिया, मेरे को कॉन्फिडेंस मिल गया कि ओके भाई, ओके पहली भी यार मर्ज हो गई। फिर बाद में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ की तरफ गया, बैकएंड में और देखा फिर। हाँ, ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था, लाइक मैंने इंस्टॉल किया था, फिर थोड़े दिन चलाया उसको। फिर एक इशू दिखा था मेरे को कि 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं था, तो मैंने उसी का इशू रेज कर दिया था कि स्पेस ऐड कराया। लेकिन उसको इशू को भी लाइक अगर कोई नया कंट्रीब्यूटर इशू रेज करता है तो उसको भी थोड़े दिन लगते हैं कि हाँ ये चेक करता है एडमिन है या ठीक है। ओपीआर में मतलब ये था कि 2 पीआर मर्ज करवाने के बाद तुम उनकी टीम में, ऑफिशियल टीम में उसमें ज्वाइन हो सकते हो। तो उसी के लिए 2 पीआर मर्ज करवाएंगे, जो लाइक उसके बाद कॉन्फिडेंस आ ही जाता है मर्ज हो जाए। तो आप यू क्रैक जी सॉक इन 23 ओ वेस्ट के साथ, और आप मेंटर भी हो। तो लाइक जी सॉक का क्या प्रोसीड्यूर रहता है और जी सॉक है क्या, मतलब क्यों क्रैक करें बंदे? सिर्फ गूगल का ब्रांड टैग है इसीलिए, या और बेनिफिट्स भी हैं उसके जी सॉक के? ओके, तो बेसिकली जी सॉक एक बिगनर ओपन सोर्स प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स या फिर जो बिगनर्स है ओपन सोर्स में आना चाहते हैं उनको हेल्प करता है, ओपन सोर्स कम्युनिटी को ग्रो करता है, क्योंकि दे प्रोवाइड फंडिंग ना, तो क्राउड और लार होता है ओपन सोर्स में, तो वो भी एक चीज़ है। तो बेसिकली एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जिसमें बेसिकली एक मार्केट प्लेस की तरह एक्ट करता है गूगल समर ऑफ कोड, जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है उनको लिस्ट करता है, फिर स्टूडेंट्स उस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, गूगल बीच में नहीं रहता कुछ, और डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और फिर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं स्टूडेंट्स और को पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ओपन सोर्स को और ओपन सोर्स मूवमेंट को और बढ़ाने के लिए और बिगनर्स को ओपन सोर्स में लाने के लिए ये प्रोग्राम निकाला गया है। सेम LFX मेंटरशिप भी ले लो या फिर और MLS फेलोशिप भी ले लो, मोस्टली इनका यही काम है। उसके लिए मतलब ऐसा होता है ना कि पहले कंट्रीब्यूट करना होता है, फिर प्रपोजल बनाना होता है। सो कंट्रीब्यूट कितना करें कि लाइक 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक तो जो पुरानी जो हर साल आई रही है जी सॉक में, उसके लिए तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, प्रपोजल से काम नहीं चलता सिर्फ। लेकिन नई ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रपोजल से काम चल जाता है। तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा है, उस टेक स्टैक या प्रोजेक्ट पे अलाइन करता है तो काम चल जाता है। तो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूट करें कि लाइक जो मेंटर्स है वो बिलीव कर ले कि हाँ ये बंदा कंप्लीट कर देगा विद इन दी 3 मंथ्स और 4 मंथ, जो भी उसका वो होता है। कितनी पीआर मच कराएं एटलीस्ट कि जो मेंटर है उसको मतलब यकीन हो जाए कि हाँ ये बंदा कर सकता है, लाइक उसको उसको थोड़ा फेमिलियर हो जाए। तो बेसिकली ऐसा है कि तुम्हें बस उसको ये यकीन दिलाना कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें जो इश्यूज जो तुम सॉल्व कर रहे हो वो थोड़े मॉडरेट रखो सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि तुमने स्टार्ट किया गुड फर्स्ट इशू से और तुम अभी तक गुड फर्स्ट इशूज ही सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और रही बात कितनी PR मर्ज करनी है, वो बहुत डिपेंड करता है ऑफ टू ऑफ तुम्हारे कंपटीशन पे भी, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बीट तो है तो कंपटीशन तो है, तो वो भी देखना पड़ेगा तुम्हें। उसके बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि कितनी PR मारनी है, पर 10+ PRs इज़ आई थिंक गुड इनफ। बाकी मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया था, तो जी सॉक से पहले 64 PRs हो गई थी, तो फिर वही सीन था कि हाँ कुछ ज़्यादा हो गई थी, कुछ ओवर ही हो गई थी, पर ठीक है, मेरे को मज़ा आ रहा था उस प्रोजेक्ट में। मेंटर्स भी अच्छे थे, कंट्रीब्यूशन में नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही थी कि हाँ प्रॉड में कैसा होता। मेंटर्स बहुत गाइड कर रहे थे कि अच्छा भाई क्यों ये टेक्नोलॉजी सेलेक्ट मत करो, क्यों ये यूज़ करनी चाहिए, क्यों वो यूज़ करनी चाहिए, अब डिप्लॉयमेंट में कैसे होता, वो सारी चीज़ें। तो वो भी हो गया, और मेन चीज़ यही है कि आपको बस मेंटर को ट्रस्ट दिलाना है। ट्रस्ट बहुत सारे फैक्टर से आ सकता, या तो तुम अपनी PRs रेस करके ट्रस्ट दिला सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को आता है, या फिर तुम कम्युनिटी में बहुत एंगेज कर सकते हो, ठीक है। तुम बहुत हेल्प, बिकॉज क्या बोलते हैं, इस कोडिंग पार्ट से के अलावा भी कम्युनिटी पार्ट भी होता है ना। हम लोग कम्युनिटी को भी मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग बहुत न्यू कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो आ रहे हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो भी पार्ट हो सकता है। मेंटर देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये ग्रो कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट को आगे, न्यू कॉन्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं उनको हेल्प कर रहा है ना। तो वो कैसे हो सकता है, वो तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए वीडियोस बना सकते हो, ठीक है। मैंने तो कुछ सेटअप वीडियो नहीं थी तो मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो मैंने वो क्रिएट की थी, और भी इधर उधर के भी बहुत सारे थोड़े बहुत किए थे। तो उससे मेंटर को ट्रस्ट आ गया था कि ठीक है ये प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है, चाहे इसको अगर कोडिंग नहीं आती हो पर लेकिन प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड है। तो वहाँ पर एक चांस बन जाता है कि ठीक है अगर तुम्हें थोड़ा कम भी आता है तो भी वो तुम्हें प्रेफरेंस देगा, क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहा है तुम पे, ठीक है, क्योंकि तुम उससे बात कर रहे हो, ये कर रहे हो। पर वही अगर तुम सिर्फ कोड कर रहे हो, तुम कभी कम्युनिटी में आते ही नहीं हो, और मेंटर को कुछ पता ही नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, बस उसको ये मालूम है कि तुम PR मारते हो, ठीक है, और उसको ये भी इंटेंशन नहीं मालूम है कि तुम जी सॉक में अप्लाई करने वाले हो, और तुमने उसको लास्ट तक बताया नहीं कि हाँ भाई ये मेरा प्रपोजल है, तुमने प्रपोजल रिव्यू नहीं करवाया है, तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रस्ट एक फैक्टर है इस प्रोग्राम में, है ना। तो
कंट्रीब्यूट करो, कम्युनिटी को ग्रो करो, ठीक है। फिर प्रपोजल जब आएगा तो आइडिएट करो मेंटर के साथ, ठीक है। अगर तुम्हें प्रपोजल मैंने जब देखा तो मेरे को कुछ समझ नहीं, मेरे को तो बोला था कि ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करना है, मेरे को ब्लॉकचेन नहीं मालूम था, मैंने उधर से स्टार्ट किया था। मैंने ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा, फिर मैंने बताया मेंटर को जाके कि ये मैंने पढ़ा, ठीक है। तो मेंटर ने बोला सही है, पर हम सोच रहे कि इस चेन के ऊपर कुछ ऐसा बिल्ड करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, फिर मैंने उसको कुछ डेमो वेमो दिखाया ऐसे, तो उसको ट्रस्ट होने लग गया कि ठीक है मैं इसको इनपुट्स दे रहा हूँ, ये सुन रहा है उस इनपुट्स को, और ये कर पा रहा है वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसको आता नहीं है पर लेकिन वो एटलीस्ट लर्न करा ऑन द वे, ठीक है। यही ओपन सोर्स का एक फ़ायदा भी है कि अगर तुम्हें नहीं भी आता तो लर्न ऑन द गो, ठीक है, वो चीज़ भी कर सकते हो। तो हाँ, ये एक फैक्टर है। एक फैक्टर तो हो गया कंट्रीब्यूट करना, और जैसे बताया कि पीआर रेस करना, वैसे ही होता है कि पीआर तो रेस है ही, इशू रेस कर रहे हो तुम, डिस्कशन फोरम में तुम इंगेज हो, और लाइक Right. मीटिंग्स होती हैं, रेगुलर मीटिंग्स, उसमें तुम अटेंड कर रहे हो तुम। तो मैं भी यही करता था, लाइक इश पीआर भी मच करता था, लेकिन डिस्कशन, और उसी से लाइक 2-3 टीम थी ओपिया में, एक लेस टीम थी, एक थी कंट्रीब्यूटर टीम जो मतलब बंदों को हेल्प करती थी। तो उसमें मैं इसीलिए ऐड हुआ था क्योंकि जो भी नया बंदा, लाइक हमारे उसमें नए बंदों के लिए कोई स्लैक ब्लैक नहीं है, गिटहब पे इशू, मतलब एक इशू वो डिस्कशन खोला हुआ है, उसी के नीचे थ्रेड चलता रहता है कि हाय आई एम इंट्रोड्यूस करते रहता है, तो उसी पे मैं ही हूँ जो रिप्लाई करता है, इसीलिए मैं टीम में भी आ गया था। तो ये है कि हाँ, दो और भी चीज़ें होती हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। और दूसरा फैक्टर होता है प्रपोजल, क्योंकि 50% चांस होते हैं, लाइक 60% आई वुड से कि तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के, तो 40% प्रपोजल्स के भी होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो प्रपोजल्स के लिए मतलब कैसे अच्छा बनाए प्रपोजल को, क्योंकि मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें लिखें कि मेंटर्स को लगे कि हाँ प्रपोजल ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक प्रोजेक्ट का अलग स्ट्रक्चर रहेगा प्रपोजल का, तो वो तुम्हें पहले अपनी प्रोजेक्ट से फॉलो अप करना पड़ेगा उसके रिलेटेड। वो तुम्हें टेम्पलेट दे सकते हैं शायद, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारा थोड़ा बैकग्राउंड भी मांगे, पर वही दूसरे ऑर्ग में ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से हो, कौन हो, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहेगा कि तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से डिफाइन कर रहे हो कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, जिसकी वजह से मेंटर जब पढ़ेगा तो उसको समझने आ जाएगा कि ओके, इसको जो मैंने बताया वो समझ में आ गया है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद तुम सॉल्यूशन पे मूव कर सकते हो। सॉल्यूशन में तुम्हारा बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि टेक स्टैक तुम क्या यूज़ करने वाले, तुम कैसे इंटीग्रेट करोगे अगर मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कोड स्निपेट्स भी डाल सकते हो कि अच्छा जैसे कि ये कंपोनेंट है, ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के लिए। तो उससे मेंटर को क्या लगेगा कि ओके रिसर्च किया है इसने, और हो सके तो तुम थोड़ा प्रोटोटाइप भी बिल्ड कर सकते हो पहले से ही। कि मैंने क्या किया था कि उसने मेरे को बताया था कि वो इसमें इंटरेस्टेड ब्लॉकचेन। मैंने क्या किया था कि पहले से ही प्रोटोटाइप रेडी करके रख दिया था दिखाने के लिए सिर्फ, तो मैंने वही लिंक कर दिया था अपने इसके अंदर। और हाँ, एक और चीज़ रहेगी कि तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में कि कैसे जो फ्लो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, जितना भी चीज़ें। तो फिग्मा से फ्लो डायग्राम्स भी मस्ट इंक्लूड है, ठीक है, प्रपोजल्स में। ज़्यादा बड़ा मत बनाओ, पॉइंट टू पॉइंट रखो, ठीक है, वो चीज़ है, क्योंकि मेंटर रीड कर रहा है, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत लंबा प्रपोजल है, बहुत कुछ कर रहा है, वैसा नहीं। एक और चीज़ है, आइडियाज़ उतने ही डालो जितने बना सकते हो, है ना। बहुत लोग, इवन मैंने भी बहुत डाल दिया था, तो जोश जोश में कि हाँ भाई मैं ये भी कर सकता, वो कर सकता, फिर टाइमलाइन में मैच नहीं होता, ठीक है। तो ठीक है, वो भी एक चीज़ है, जितना तुम मेंशन करो उतना कर पाओगे। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी या फिर वैसे तो मेरे ऑर्ग में तो हम लोग चूज़ कर सकते थे कि हाँ हमें ये आइडिया भी इंक्लूड करना है, पर दूसरे ऑर्ग्स में जैसे लिक्विड गैलेक्सी में फॉर एग्जांपल, उसमें पहले से प्रोजेक्ट्स दे देते कि हाँ तुम इसी पे काम करोगे, तो उनका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। तो उसके लिए भी वही चीज़ें जो मैंने अभी बताई, पर उसमें तुम्हें मेंटर से बहुत इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें मेंटर्स से रिव्यू कराना पड़ेगा। एक बेसिक ये जो मैंने अभी बताया वो स्ट्रक्चर बना दोगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंटर को भेजोगे, तो मेंटर को बोलोगे कि क्या या फिर तुम टेक्स्ट में भी बोल सकते हो कि मैं ये इंक्लूड कर रहा हूँ, ये लाइब्रेरी अच्छी है या ये लाइब्रेरी अच्छी है, कैसे। तो वो आपको इनपुट्स देगा थोड़े, तो वो इनपुट्स आप प्रपोजल में ऐड कर सकते हो। फिर प्रपोजल को ही भेज के 3-4 बार रिव्यू कराओ, वो तुम्हें इनपुट्स दे देगा वैल्यूएबल जो वो चाहता है देखना, ठीक है। वो बोल सकते हैं कि ये वाला इंटीग्रेशन वाला पार्ट मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इससे अलाइन नहीं हूँ, तुम कुछ और ऐड कर सकते हो, इससे मैं इस वाले लाइब्रेरी से मैं इंटरेस्टेड हूँ मैं यूज़ करने के लिए। तो तुम वही मेंशन करके वो लाइब्रेरी सीख सकते हो। वही है ना कि मेंटर जो चाहता है तुम्हें एट द एंड वही करना पड़ेगा, फिर थोड़ा ट्विस्ट रह सकता है आगे जाके, ठीक है। प्रपोजल इटरेशन मस्ट है मेंटर के साथ, और कम्युनिकेशन रहना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, ओपन सोर्स, ओके, यही है। और ज़्यादा बड़ा मत बनाओ, पूछ लो मेंटर से कि कितना बना सकते हैं। बहुत बहुत सारी ऑग में 7-8 पेजेस की लिमिट रहती है, ठीक है।
भाई कुछ और में बोल सकते हैं कि 25 पेज का तो रहना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है ऑफ टू। हाँ, जैसा आपने बताया कि प्रपोजल लॉन्ग नहीं रखना चाहिए। सो मैंने यही गलती करी थी कि मैंने भर भर के जितनी डिटेल्स होनी चाहिए थी सब लिख दिया था उसमें। लाइक जब मेरे को बाद में फीडबैक मिला एडमिन से, तो मैंने बाद में पूछा कि क्या फीडबैक था, तो एक मीटिंग भी हुई थी उसके साथ। तो बोल रहा था कि तुमने बहुत अननेसेसरी थिंग्स डाल दी थी। ऑल्दो भाई लाइक उसने फीडबैक दिया था कि मैं इशू जब रेज करता था या पीआर रेज करता था तो उसके टाइटल बहुत वेग हो जाते थे कभी कभी। तो वो बोल रहा था कि जब भी पीआर रेज करो या इशू रेज करो तो बहुत क्लियर होने चाहिए कि पढ़ के ही समझ आ जाए कि हाँ बंदा क्या कर रहा है। तो वो था। आपने इस साल मेंटर भी किया है जी सॉफ्ट जी ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रपोजल भी बहुत सारे देखे होंगे। तो मतलब क्या अगर मैं प्रपोजल सबमिट कर रहा हूँ वेस्ट में, तो क्या कंसिडर करोगे कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए? क्या देखोगे ऐसा प्रपोजल में? पहली चीज़ ये है कि प्रपोजल तो बस एक डॉक्यूमेंट पार्ट है, ठीक है। प्रपोजल से पहले जो चीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेंटर मेंटी डिस्कशन रहता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि मेंटर और मेंटी एक साथ मिलके ही वो बेसिकली उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं ना, उस टास्क को या फिर उस आइडिया को। तो प्रपोजल बनाने से पहले जो बातें होती है ना कि तुम मेंटर से पूछोगे वो सब, तो वो चीज़ अगर मैं देखूंगा, जैसे सपोज मैंने कुछ लाइब्रेरी सजेस्ट की, उसने कुछ सजेस्ट किया, फिर हम एग्री केस पे, ठीक है। तो ये बातें होके हम एक म्यूचुअल चीज़ पे आए, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ें अगर प्रपोजल में इंक्लूड रहेगी तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। शॉर्ट हो, कट टू द पॉइंट हो, ज़्यादा ज़्यादा भर के ना हो। मैंने भी ये गलती की थी, ऑब्वियसली मेंटर ने बोला कि ये करो, पर जब मैंने खुद रिव्यू किया तो पता चला अरे इतना सारा क्यों पढ़ूँ मैं, मेरे को स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चाहिए। फ्लो डायग्राम हो तो बहुत सही है। अगर तुम्हारा वेब का पार्ट है तो फिग्मा डिज़ाइन इंक्लूड कर सकते हो पहले से बना के, पूरी अच्छी नहीं हो तो भी चलेगा, वायर फ्रेम्स हो तो भी चलेगा। वो चीज़ें हो गई। जो भी हेडिंग्स दे रहे हो, है ना, वो भी थोड़ा समझानी चाहिए कि ओके क्या क्या तुम इंक्लूड करने वाले हो। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। मैंने वैसे भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है मेरी खुद की कि कैसे प्रपोजल पूरा मैंने खुद का प्रपोजल पढ़ा और मैंने बताया कि ओके ये मैंने किया था, इस पे मेंटर ने बोला कि ये मत करो, ये करो, वैसे करके। तो वही सारी चीज़ें हैं। पर तीन तीन चीज़ मैं जो डालना चाहूँगा या देखना चाहूँगा वो है कि तुमने पास्ट में क्या कंट्रीब्यूट किया है उसकी एक लिंक डाल देना, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरा जो भी तुम्हें समझने आए हैं बिल्कुल अच्छे से, या फिर मेरे साथ जो डिस्कशन हुई है वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उसके अंदर, पूरा अच्छे से पॉइंट में, पर ज़्यादा डिटेल में नहीं। जो सॉल्यूशन है उसमें वही फ्लो डायग्राम्स ये सब इंक्लूड करो। तो ये तीन चीज़ें, कोड स्निपेट्स इंक्लूडिंग वो भी, तो ये तीन चार चीज़ें है तो बहुत बहुत काफ़ी है प्रपोजल के लिए। ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हें बहुत ही तगड़ा प्रपोजल बनाना है, इतना बनाना है कि मेंटर को समझ में आ जाए कि ओके इसको मालूम है। और वैसे भी वो प्रपोजल देख के नहीं होता, वो प्रपोजल के बाहर जो चीज़ें रहती है उससे हो जाता है ना। वो तुम्हें जानता है, तुम मीटिंग्स में आते हो, तुम बता रहे हो कैसे, तो प्रपोजल बहुत शॉर्ट भी होगा। मैंने देखे जो बहुत लोग बहुत तगड़े हैं, मीटिंग्स में आते हैं, बहुत नॉलेज है उनको, प्रपोजल बहुत नॉर्मल सा था फिर भी एक्सेप्ट हुआ है। तो वो बेसिकली वही है कि मेंटर ही तुम्हारा प्रपोजल रैंक करेगा और वो कैंडिडेट को चूज़ करेगा ना कि प्रपोजल को, है ना। तो प्रपोजल डिसेंट भी होगा तो चलेगा, बेसिक चीज़ें फॉलो करता होगा तो भी चलेगा, पर मेंटर के साथ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। या लाइक आपने बोला कि बहुत तगड़ा प्रपोजल लगा, वो भी एक फैक्टर था। जब मेरी मीटिंग्स हो रही थी लाइक एडमिन के साथ, तो उसने बोला कि मैंने कई बंदों को रिजेक्ट किया है क्योंकि उनके प्रपोजल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसीलिए मैंने रिजेक्ट किया है। क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन उनकी इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन उनके प्रपोजल बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने किसी से हेल्प ली है, इसका सीधा सीधा मतलब है। तो बोला था कि प्रपोजल से इतना मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, प्रपोजल ऐसा होने चाहिए कि मतलब मुझे समझ आ जाए कि तुम कर लोगे। अगर ज़्यादा ही अच्छा प्रपोजल हो गया तो वो कह रहा था मैं डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता हूँ। और लाइक अगर अगर जैसे मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर चुका हूँ और दूसरा बंदा है जो जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया लेकिन उसका प्रपोजल अच्छा है, तो आप कैसे कंसिडर करोगे? ऑब्वियसली हमारे ऑर्ग में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, कम्युनिटी में एंगेज था, उसी को भी हम चूज़ करते हैं। प्रपोजल डिसेंट भी हो तो चलेगा। अच्छा, तो जी सॉफ्ट तो हो गया क्योंकि ये बहुत फेमस है, गूगल ब्रांड आ गया। लेकिन जो अदर प्रोग्राम्स हैं जैसे LFX हो गया, MLH हो गया, तो उसके बारे में कहाँ पता चला आपको, कैसे पता चला? ओपन सोर्स मतलब जी सॉफ्ट तो एक तो हो गया ना कि सबको पता ही चल जाता है, लेकिन LFX MLH काफ़ी अंडर रेटेड है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं। इवन लाइक जिनसे लोगों से बात करता हूँ उनको ओपन सोर्स के बारे में नहीं पता होता, गूगल समर ऑफ कोड के बारे में पता होता है। तो पहले गूगल समर ऑफ कोड के बारे में जानते हैं, फिर ओपन सोर्स के बारे में जानते हैं। सो MLH LFX इसके बारे में कहाँ पता चला आपको? ओके, तो LFX मेरे को एक्चुअल में नहीं मालूम था, मैंने शायद कोई तो वीडियो देखी थी। MLH की भी सेम चीज़ है, कहीं ना कहीं से तो पता चलना था, तो वो तो यूट्यूब से ही चला पता।
वैसे फिर LFX में मैंने ये देखा कि लिनक्स आती है, CNCF ये सब भी आती है। मैं CNCF इनमें मैंने कभी देखा नहीं था और मैं उसमें उस डोमेन में था भी नहीं। पर मैंने वही बताया कि मैं लिनक्स से थोड़ा लिनक्स में ट्वीकिंग वीकिंग करता रहता था, प्राइसिंग करता था, कर्नल्स चेंज कर देना, अपना नया नया वर्जन बिल्ड करके डाल देना मुझसे, वो सब चीज़ें 1-2 बार ट्राई की थी। तो मेरे को मैंने जब देखा, क्योंकि यहाँ पर लिनक्स आई गेस बग फिक्सिंग मेंटरशिप प्रोग्राम भी है अनपेड जो कि चलता है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार इसमें ट्राई कर लेते हैं, मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, सीखने के लिए मिलेगा कुछ नई चीज़ें। मेन वो है कि अंदर जाके जो मेंटीज मिलेंगे उनसे भी बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा, जो कि होता है ना। तो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया LFX में, और मैंने बाकी में भी किया था, पर मेरे को वो टेक्नोलॉजीज भी नहीं मालूम थी और मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो मैंने इसमें अप्लाई किया। टास्क तो बहुत यही थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि तुम ये कंप्लीट कर दोगे तुम एक्सेप्ट हो जाओगे। तो वही था कि लिनक्स कंपाइल करो, लिनक्स के ड्राइवर्स में चेंजेस करो, कंपाइल करके अपने आउटपुट्स दिखाओ। तो मैं वही मेन सिस्टम में ही लिनक्स कंपाइल करके मेन सिस्टम के साथ ही छेड़ रहा था, ब्रेक हो रहा था सिस्टम। तो वो सारी चीज़ें में मज़ा आ रहा था, सिस्टम लेवल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता था मैं। तो अ, मैंने LFX में अप्लाई किया। वो तो LFX तो बस मेरे को इधर से ही पता चला, यूट्यूब से ही पता चला। MLH का सीन ये था कि MLH में हैकाथॉन्स मैंने देखना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सुना था MLH के बारे में वहाँ से भी, फिर बाद में मैंने किसी वीडियो में भी सुना कि ओके MLH का ये फेलोशिप का भी कुछ प्रोग्राम है जिसमें एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने सोचा कि ओके भाई, एक्सपीरियंस तब तो मैं बहुत इनिशियल लेवल पे था, तो मेरे को एक्सपीरियंस गेन करना था ऑब्वियसली। तो मैंने देखा कि 2 प्रोग्राम से प्रेप और फेलोशिप। उस टाइम पे प्रेप चलता था, अभी शायद बंद कर दिया उन्होंने। तो प्रेप में बेसिकली कुछ नहीं, 1 मंथ की ऐसे मेंटोरशिप प्रोग्राम रहता है जिसमें तुम दो प्रोजेक्ट्स बनाते हो, पूरी टीम मिलके 30 लोग रहते हैं एक पॉड में, 2 पॉड्स रहेंगी और एक पॉड पूरा मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करता है। जैसे बहुत नॉर्मल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, पर उसमें मेनली ये फोकस किया जाता है कि टेक स्किल्स के अलावा, तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स के अलावा कोलैबोरेशन कैसे इंप्रूव करे, प्रोफेशनलिज्म कैसे लाए, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है इसमें। तो मोस्टली सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस था उसमें, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो MLH प्रेप में तो मैंने जस्ट ट्राई किया, क्योंकि दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था। MLH प्रेप से एक्सेप्टेंस आ गया था, तो फिर मैंने कर दिया। फेलोशिप में अगेन रिजेक्ट हो गया था मैं और वो मैं 6-7 बार अप्लाई किया, तो मैं रिजेक्टेड ही हुआ फेलोशिप में, मैं एक्सेप्ट नहीं हुआ फेलोशिप में। मैं एक्सेप्ट हुआ Web3 इंक्यूबेटर में, जो कि बेसिकली एक हैकाथॉन से था। तब मैं थोड़ा हैकाथॉन्स में था। मेरी एक टीम थी, भावना, प्रथमेश, फिर साहिल जो मेरे साथ ही बैठा है अभी। तो हम सब ऐसे बेसिकली देखा कि ओके MLH का नियर इंक्यूबेटर का हैकाथॉन चल रहा है, नियर ब्लॉकचेन के बारे में हमने सुना था, तो हमने सोचा कि चलो भाई एक बार ट्राई करते हैं हैकाथॉन। भावना ने इंसिस्ट किया कि ओके करते हैं। हमने कहा ठीक है ओके चलो वही करते हैं। उसके बाद हमने किया हैकाथॉन, बिल्ड किया। उतना प्रोडक्शन कुछ बिल्ड नहीं हुआ अच्छे से, पर जो हमने आइडिया जो पिच किया वो उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने 4 टीम सेलेक्ट किया आई गेस, जो उनको लग रही थी कि वो मेंटरशिप देना चाहते हो उन प्रोजेक्ट्स को। बाकी प्रोजेक्ट्स भी अच्छे थे, हाँ डेफिनेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, 80 या 50 आई गेस प्रोजेक्ट्स आए थे, अच्छे थे उसमें से। पर उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहिए थे जो वो उनको लग रहा था कि पोटेंशियल और कुछ रेवेन्यू दे सकते हैं, और शायद बेसिकली वही सारी चीज़ें कि ज़्यादा Web3 फोकस ना हो, क्योंकि MLH भी इन्वॉल्व है इसमें। तो हमारा Web2 Web3 फोकस थोड़ा मिडिल में था प्रोजेक्ट। तो फिर टॉप 4 टीम्स सिलेक्ट की, फिर Web3 इंक्यूबेटर में लिया, जो कि बहुत डिफरेंट रहता। उसमें जो इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें MLH मोस्टली सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करने के लिए फोकस करता हम हमारे ऊपर, या फिर नॉन टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। और जो टेक्निकल पार्ट है इंक्यूबेशन का, जैसे बिजनेस मेंटरशिप और फिर टेक्निकल मेंटरशिप, वो सारा नया प्रोटोकॉल प्रोवाइड करा था, और हमें बस अपना जो प्रोजेक्ट आइडिया है वो बिल्ड करना था। तो इट्स लाइक रियली डिफरेंट फ्रॉम MLH फेलोशिप। जी सब तो बहुत सॉर्टेड है कि एक बंदा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन MLH के बारे में भी काफ़ी कन्फ्यूजन कि MLH प्रेप हो गया, फेलो हो गया, फिर Web3 हो गया। अगर किसी बंदे को अप्लाई करना है MLH में, तो स्टेप्स क्या होती हैं? लाइक पहले किस में अप्लाई करना पड़ेगा? लाइक मैंने सुना था कि पहले प्रेप में कंट्रीब्यूट करना, लाइक अप्लाई करना पड़ता है, फिर आगे आता है, ऐसा कुछ होता है। और एक बात और है कि अभी चल रहा है न्यूज़ में कि MLH बैंड हो गया इंडिया के लिए, तो इसका क्या पंगा है? लाइक सच में बैंड हो गया? मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी, बोल रहे हैं कि हाँ सुनने में आ रहा है MLH बंद हो गया इंडियंस के लिए। स्टार्टिंग से लेते हैं कि MLH प्रेप करना ज़रूरी है, वैसा कुछ नहीं है। तुम फेलोशिप में भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, अगर उनको बेसिकली MLH फेलोशिप ज़्यादा डाइवर्सिटी पे फोकस करता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं उसमें बुरा, ठीक है। उनकी कम्युनिटी ही ऐसी है कि उनको डाइवर्स रखना है उन कम्युनिटी को। और यही है कि 99% ऑफ एप्लीकेशंस, आई गेस 98, नॉट श्योर, बट इंडिया से ही आते हैं। तो ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रिजेक्ट होंगे ही होंगे, है ना,
क्योंकि इंडिया से कंपटीशन है तो होने ही वाले है। वो कम्युनिटी उतनी बड़ी नहीं है, मतलब बहुत बड़ी है वैसे, पर लेकिन इतने एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए नहीं, तो उनको बहुत वो हो रहा होगा, तो आई गेस शायद उसकी वजह से। और कुछ इंटरनल मैटर्स भी हो सकते हैं उनको, मेरे को उसका कुछ आइडिया नहीं है और उस पर कमेंट भी नहीं करूँगा मैं कि क्यों क्यों वो नहीं ले रहे। पर मेरे ख्याल से यही सीन है कि शायद एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और एमएलएच फेलोशिप के शायद विजन कुछ अलग है, तो वो चीज़ें हैं। बाकी इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस कनाडा में भी मूव करते हैं ना, तो वो प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली कि वहाँ से भी सिलेक्ट करें, है ना। अगर वहाँ से भी इंडियंस ले रहे हैं और यहाँ से भी ले रहे हैं तो फिर वो हो जाएगा, तो उनको बेसिकली डाइवर्स रखना है, तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि क्यों बैन किया। हाँ, यही चीज़ है। बाकी प्रेप में एमएलएच फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए बेस्ट चीज़ें ये है कि जब बहुत सारे लोग आते हैं ऑब्वियसली, तो एप्लीकेशंस श्योर नहीं हो, पर 60,000 मैंने कहीं तो सुना था, पर बहुत होती है 60,000 भी, है ना, एक नॉर्मल कम्युनिटी के लिए, है ना, एमएलएच के लिए तो बहुत ही है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले तुम अप्लाई कर दो। जैसी डेट्स रिलीज़ होती है कि ओके एप्लीकेशन ओपन है, उसी दिन या फिर उसी 5-6 दिन के अंदर डाल दोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हें एटलीस्ट रिवर्ट बैक तो आ जाएगा। अगर तुम ऑलमोस्ट ऐसे डेडलाइन के लिए 1 महीना बचा है, 1 महीना भी बचा है और तो भी तुम एप्लीकेशन डालोगे, तो मोस्टली चांस है कि तुम रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि उनको पहले के पायलट एप्लीकेशंस भी उनको रिव्यू करने और वो सब करने, है ना, टाइम लगता है एक्चुअली में। तो कोई आएगा तुम्हारे तुम्हारे जो भी तुम्हारा रिज्यूमे या फिर बेसिकली तुम्हारी एप्लीकेशन पे, हाँ, तो उसके बाद से 8 दिन का प्रोसेस रहता है जिसमें वो पूरा रिव्यू करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने से तुम्हारा रिव्यू के लिए आया ही नहीं है, क्योंकि वो पहले का रिव्यू कर रहे हैं, पर जब आएगा तो तुम्हें 8 दिन तो लगेंगे। तो बेस्ट केस है कि तुम बहुत पहले अप्लाई करो, एटलीस्ट 3 मंथ्स, ये सबको एडवाइस मैं यही देता हूँ। उसके बाद कोड सैम्पल्स का ये हो गया कि ट्राई करो कि लिंक्डइन पे जाके मत मारो, वो दूसरे से है वो बिंग, बहुत सारे मैंने लोग देखे। ठीक है, हेल्प ऐसे रिव्यू करने के लिए बोल सकते हो, पर ये मत बोलो कि सर आपको मेरे को ये दे दो, जो भी आपने ऐसे लिखा था वो मेरे को दे दो, ये तो चीटिंग होगी ना, है ना। और वैसे भी बोलूँ, वैसे भी उनका यही है कि तुम अपने आप को एक्सप्रेस करो ना, मतलब कि तुम क्यों यूनिक हो, है ना, सबका यूनिकनेस अलग है ना। तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसे लिखने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये कम्युनिटी क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, इन दोनों के बीच में ओवरलैप क्या हो रहा है, कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें मेरे को यहाँ से सीखने मिलेंगी, वो सारी चीज़ें, और क्या क्या चीज़ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, उसका ओवरलैप बना के पॉइंट्स बनाओ। उसके बाद डिटेल में 3-4 पॉइंट्स भी लिखोगे, उसका डिटेल एक एक पैरा बनाओगे तो भी बहुत है कोड ऐसे के लिए। और कोड सैम्पल के लिए बेसिकली तुम्हें बहुत नॉर्मल सा प्रोजेक्ट चाहिए, जो वो भी डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा बहुत बहुत अच्छा, उसके पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, पर भाई दूसरा बंदा है वो उतना नहीं जानता, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरा बंदा सेलेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये इस पे जज नहीं करते कि तुम्हें कितना आता है, क्योंकि ये तुम्हें ट्रेन करना चाहते हैं, तुम्हें हेल्प करना चाहते हैं बिजनेस को, है ना। तो कोई भी ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकता है, तो ये उनका डिसीजन है कि ये किसको लेना चाहते हैं और किसको नहीं। तो वो हो गया, पर तुम बस ट्राई कर सकते हो। बेसिकली यही था 3-4 पॉइंट्स कोड से। और एप्लीकेशन में क्या क्या डालना होता है? ऐसे डालना होता है और रिज्यूमे डालना होता है। हाँ, वो बेसिकली गिटहब पूछेंगे, बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, लिंक्डइन से पूछेंगे, कोड सैम्पल पूछेंगे, उसमें तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि क्या है ये प्रोजेक्ट और क्या क्या तुम सीखे इसके बारे में, तो वो तुम्हें लिखना है ज़्यादा डिटेल में, पॉइंट में लिखना है अच्छे से, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, क्योंकि उनको भी रिव्यू करना है, और ऐसे इतना बड़ा पैराग्राफ आ रहा है, वो भी परेशान हो जाएंगे। तो बेसिकली वही कोड सैम्पल डालना है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर 3 ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हें पहले अपने बारे में बताना है कि तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम एमएलएच का अबाउट सेक्शन पढ़ो, क्योंकि तुम्हें जानना पड़ेगा ना जहाँ पर तुम जा रहे हो, और तुम्हारे अंदर जो स्पेशलिटी है, क्या ओवरलैपिंग चीज़ है जो वो देख के ले सकते हैं ना, क्योंकि कम्युनिटी पे भी उसको इन्वॉल्व करेंगे जो कम्युनिटी से मैच करता है ना। तो ऐसी चीज़ें तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी जो मैचिंग हो, ठीक है, ठीक है। और फिर उसको एलैबोरेट करना पड़ेगा कि तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कैसे तुम्हें हेल्प करेगी अपॉर्चुनिटी, वो सारी चीज़ें भी। तो मैं सुनता हूँ कि इट इज़ हार्ड देन जीसॉप, लाइक इज इट रियली लाइक गूगल समर ऑफ कोड में? और यहाँ पे टीम कंट्रीब्यूट करती है ना यहाँ पे एमएलएच में? प्रेप में तो टीम कर दिया है, क्योंकि कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रोजेक्ट नहीं रहता, वो तुम्हें खुद देते हैं, प्रोजेक्ट अनपेड रहता पूरा, वो तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट देते हैं, बोलते हैं कि हाँ वेदर ऐप बनाओ, ये बनाओ, पर कोलैबोरेट करके बनाओ, ठीक है। तो वो एक अलग पार्ट हो गया। उसमें ऐसा था कि टीम की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे थे वो हमारा खुद का प्रोजेक्ट था। पर फेलोशिप में ऐसा रहता है कि वो तुम्हें सिलेक्ट करेंगे, वो तुम्हारे स्किल्स के बेसिस पे राइट मैच ढूंढेंगे, कोई भी रिमोट स्टार्टअप में या फिर कोई भी एस्टैब्लिश कंपनी में, मोस्टली स्टार्टअप्स ही रहते हैं वो, पर लेकिन ओपन सोर्स रहेंगे, है ना, ओपन सोर्स स्टार्टअप्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे। जैसे स्टार्टिंग में तो आई गेस गिटहब ओपन सोर्स आता था, फेसबुक ओपन सोर्स आता था, ठीक है, जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स है वो आते थे।
तो उसमें भी मैंने देखा है लोगों कंट्रीब्यूट, जो मेंटीज थे उसमें भी कंट्रीब्यूट किए हैं। जैसे सोलाना वेब 3 की भी आई थी सोलाना, उसमें भी ओपन सोर्स एमएलएच के साथ पार्टनर किया था उन्होंने एसडीकेस बनाने के लिए। तो बहुत सारे मेंटीज ने वो एसडीकेस भी बनाए थे। तो जो भी उनको लगता कि ठीक है, उनको वेब 3 का थोड़ा एक्सपीरियंस है, और जो भी तुमने मेंशन किया एप्लीकेशन पे, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि ऐसा हो सकता है कि दूसरे बंदे के पास कोड सैंपल इतना अच्छा नहीं है, पर उसकी जितनी भी चीज़ें जो उसने सीखी है, जो भी मेंशन की है, वो कंपनी के साथ बहुत रेजोनेट करनी है, ठीक है। या फिर वो उस ओपन सोर्स रेपो में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है, रेजोनेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसको सिलेक्ट कर देंगे। तुम्हें बोल देंगे कि देयर वाज नो राइट प्रोजेक्ट फॉर यू, ऐसे करके कुछ तो मेल आता। तो वही है, मेरे को तो हर बार वही आता था। तो अगर तुम्हारा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुई तो 2 इंटरव्यूज रहते। बिहेवियर इंटरव्यू रहता जिसमें वो नॉर्मल तुम्हारे बारे में जानेंगे, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, वो सारी चीज़ें। टेक्निकल इंटरव्यू में जो तुमने प्रोजेक्ट सबमिट किया वो तुम्हें दिखाना है, फिर पूरा मतलब बेसिक समझाना है कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे किया, फिर वो रन करके दिखाना है। और वो फिर तुम्हें उस टीम में से ही पूछेंगे कि अच्छा भाई तुमने ये कैसे बनाया, तुमने ये लाइब्रेरी क्यों नहीं यूज़ की, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मेरा फ्लास्क था तो फ्लास्क कैसे काम करता, क्या तुमने जैंगो के साथ वर्क किया, जैंगो कैसे काम करता। तो वो सारी चीज़ें पूछी थी। एसक्यूएल एल्केमी जो भी ORM यूज़ कर रहे थे, वो ORM क्या होता है, उसके फुल फॉर्म क्या है, वो बेसिक चीज़ें रहती है तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि तुमने डेवलप किया है या नहीं। तो वो भी पूछी थी। बहुत बहुत चिल रहता है इंटरव्यू, और छोटा भी रहता है, आई गेस ½ एन आवर का रहता। तो यही प्रोसीजर है उसमें। MLS हो गया, फिर उसके बाद LFX का क्या प्रोसीजर रहता है, और LFX है क्या? लाइक लिनक्स जैसे गूगल प्रोवाइड कराता है गूगल समर ऑफ कोड, ऐसे लिनक्स कराता है लिनक्स फाउंडेशन मेंटरशिप प्रोग्राम। उसमें गूगल समर ऑफ कोड में तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करती हैं, पर LFX में बहुत गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे CNCF हो गई, ओपन मेंशन प्रोजेक्ट हो गई। इसका क्या प्रोसीजर रहता है, लाइक क्या कैसे एप्लीकेशन डलती हैं फिर? ओके, एल एफ एक्स का जितना मैंने प्रोसीजर देखा ना, वो प्रोजेक्ट सेंट्रिक ज़्यादा है। जैसे गूगल समर ऑफ कोड में ऑग सेंट्रिक रहता है ना, ऑग्स पार्टिसिपेट करती है, वो प्रोजेक्ट्स निकालती। इसमें प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट आते, लिस्ट होते प्रोजेक्ट्स। फिर तुम्हें दिख जाएगा, आई गेस हर 3 महीने के बाद प्रोजेक्ट्स आते। पर इस बार जिस ऑग ने प्रोजेक्ट्स डाले वो नेक्स्ट टाइम नहीं डालती है, आई गेस उसके बाद वाले में डालती है, ऐसा सीन है। उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स निकालते, तो मैं कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट पढ़ना है कि ओके क्या, जैसे कि एक था कि सोल SDK कुछ तो इंटीग्रेट करना था। किस में था ये, हाइपर लेजर में था कुछ तो, शायद हाइपर लेजर में कुछ तो रस्ट SDK बना रहे थे। तो वो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था उन्होंने, डिस्क्रिप्शन क्या है। फिर तुम्हें क्या करना है कि हाँ भाई सोल SDK बनाना है, कुछ ऐसा ही था। तो उसकी रेपो मैंने क्लोन करके सेटअप करने का ट्राई किया। मैंने उसमें कभी ट्राई नहीं किया, मैंने बस सेटअप किया, उसके बाद मैं छोड़ दिया था। पर बेसिकली वही था कि कुछ कंपाइलर बनाना था कुछ तो, और प्रोजेक्ट को समझा। बेसिकली यही सेम। फिर बाद में GSOC का प्रोसीजर आ जाता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट पता चल गया, ठीक है, तुम मेंटर्स के पास जाओगे। उनका डिस्कॉर्ड था हाइपरलेजर का, तो तुम जाके बात कर सकते हो, पिंग कर सकते हो कि ओके हाँ ये मैंने सेटअप कर लिया है, मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ इसको एग्जीक्यूट करने का। फिर मेंटर्स के साथ वही सारी सेम चीज़ एग्जैक्ट GSOC जैसा ही हुआ। प्रोजेक्ट में बस अप्लाई करना रहता, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है कैसे अप्लाई करते। प्रपोजल डालना है, CV डालना है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी डालनी है। तो बेसिकली यही है। हाँ, लाइक पहले लाइक रेज्यूमे भी डालना होता है, फिर कवर लेटर, और एक दो PR अगर रेस करनी है वो भी करनी है। उसके बाद मेरा तो एक इंटरव्यू भी हुआ था मेंटर के साथ। उनके 3 प्रोग्राम्स ही हो गए, LFX हो गया, GSOC हो गया, MLH हो गया। और कौन से प्रोग्राम्स है जिस लाइक जो ऐसे ही? फेमस प्रोग्राम्स हो गए, आउटरीच ही हो गया। हाँ, कुछ प्रोग्राम्स जो ज़्यादा लोग सुने नहीं है, वो आई गेस इगालिया कोडिंग एक्सपीरियंस है, वो भी एक अच्छा प्रोग्राम है। इगालिया एक ऑर्ग है, वो ऑर्ग ही वो कंडक्ट कराती है पूरा व्हाट्स प्रोग्राम खुद ही के लिए। तो उनके प्रोजेक्ट्स में तुम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इगालिया बहुत सही प्रोजेक्ट्स है। वुलवेक एक प्रोजेक्ट हो गया। फिर कुछ कुछ तो मीटिंग से रिलेटेड भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे उनके। तो मैंने ट्राई किया था, पर अगेन मैंने एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया उसमें भी। वो एक हो गया। फिर आउटरीच एक हो गया। इसके अलावा भी होते हैं, पर वही है कि हाँ, एक था एग्जॉर फेलोशिप। एग्जॉर फेलोशिप ये भी शायद फेमस हो रहा था, पर ये AR VR सेंट्रिक है, मेटा से रिलेटेड, ठीक है, मेटावर्स से रिलेटेड। तो वो भी, अगर तुम्हें गेमिंग में इंटरेस्ट है, तुम्हें ब्लेंडर ये सब में डिज़ाइन 3D मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, तो तुम उसमें भी ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि तुम सिर्फ डेवलपर हो, तुम एसेट्स बना सकते हो। तो वो भी बहुत है एग्जॉर फेलोशिप में जाने के लिए। सेम प्रोसीजर रहेगा, प्रपोजल बनाना है, मेंटर से बात करना। की पॉइंट सही है, प्रपोजल, मेंटर से बात करना, और PRs अगर तुम मार सकते हो। तो ये 3 चीज़ें अगर बहुत अच्छे बैलेंस में है, तो वही है कि तुम क्रैक कर लोगी इसलिए।
ये चीज़ है कि तुम हैकाथॉन्स में कुछ हारोगे नहीं, है ना? ये लोग जो बिल्ड कर रहे हैं तो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल शिट है। तो फ्रेंड है, उसने मिया खलीफा के साथ पॉडकास्ट किया ऐसे करके, और फिर वो सुनाने लग गया फ्रेंड को। उसने कहा नो नो इट्स एआई, इट्स ऑल एआई ऐसे करके। तो मैंने तभी क्लिक किया, ओके डैम भाई। तो एक टोर्नेडो कैश करके एक प्रोडक्ट था जो कि उसके फाउंडर्स अभी जेल में है जादू से मालूम चल गया, हमने डॉक्स पढ़ी, चैट जीपीटी किया भर भर के, ठीक है। तो यही चीज़ होगी। तुम पहले हैकाथॉन 2 दिन बाद था, हमने 2 दिन पहले रजिस्टर किया, ट्रेन की टिकट बुक की और निकल गए हम डायरेक्ट बैंगलोर। उसके बाद वहां पर गए, वो तो ऑफलाइन हैकाथॉन था भाई। ऑफलाइन हैकाथॉन में जो मजा है ना, बहुत वो चीजें। पर हम जीत गए, वो उनको प्रोजेक्ट अच्छा लगा। हमने बहुत बात पार्टनर्स की ऐसे। बनाओ। हाँ ऑब्वियसली वो भी एक पार्टनर है। वहां पर जाके भी पार्टनर्स बना सकते हैं तुम। रजिस्टर किया कि चलो भाई लंदन घूम लेंगे तो हमने बहुत वहां पर तो ऐसा था कि बहुत बहुत तगड़े लोग मिले थे, बहुत तगड़े हमें।